सरेंडरिंग, खुद हवालगी। आप कभी कभी अपनी गाड़ी को जब मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी नहीं चलती, फिर मैकेनिक उसको देखता है जो फॉल्ट है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के सामने आप सरेंडर हो जाते हैं। डॉक्टर चाहे आपको एनेस्थीसिया दे, आपको बेहोश करे, आपका एक भरोसा होता है डॉक्टर के ऊपर। ऐसे ही अभी नेचर के ऊपर एक भरोसा बनाएं और हम सुबह को इस कायनात के सबसे बड़े डॉक्टर के पास आए हैं। अपने आप को सरेंडर करें। एक अनदेखा हाथ हर वक्त हमें हील करने के लिए मौजूद है, लेकिन हम इतने बिजी हैं, इतने भाग दौड़ में हैं कि हम उस अनदेखे हाथ से हमेशा ही अपने आप को बचा के रखे हैं। कोई पेशेंट अगर डॉक्टर के सामने सरेंडर ना हो, डॉक्टर के अपने आप को हवाले ना करे, तो डॉक्टर बेचारा क्या करेगा? वो आपको ट्रीट नहीं कर पाएगा। और आज आप उस डॉक्टर के पास आए हैं, नेचर के पास आए हैं, जिससे आपकी तख्लीक है। मैं फिर कहता हूँ, सरेंडर करें, सरेंडर करें। एक अनदेखा हाथ, एक एनर्जी, एक पावर आपको शफायाब, तंदुरुस्त, सेहतमंद करने के लिए हमातन हर वक्त तैयार है। हम तैयार नहीं हैं। आज तैयारी करें, अपनी भाग दौड़ बंद करें, ठहर जाएं, सारे बर्डन्स, पास्ट और फ्यूचर के ख्यालात सारे ड्रॉप कर दें। मैं खालिस्तन, प्योरली 100% नाउ में आता हूँ, प्रेजेंट में आता हूँ। नाउ लफ्ज़ ये जो है ना, खुशहाल, इसका मतलब है जो हाल में खुश है। सच पूछें, जो हाल में होता है वो खुश ही होता है। अगर आपको सच्ची खुशी चाहिए, सेहत चाहिए, तो नाउ, हाल। मैं हूँ और ये सुबह है, ये सुबह की ताज़ा हवा है, ये परिंदों की चहचहाट है। जब आप सरेंडर करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी उस यूनिवर्सल पावर से जहां से आप आए हैं। जो दुनिया की जदीद तरीन तहकीकात हो रही हैं, उससे ये पता चल रहा है कि इंसान स्पिरिचुअल बीइंग है, ये एनर्जी बीइंग है। आपका दिल वो जज्बात से, एहसासात से इर्ताश में आता है, हरकत में आता है। उसमें एक रेजोनेंस, एक थरथराहट पैदा होती है, एक गूंज पैदा होती है। इसी तरह आपके पूरे वजूद के अंदर, आपकी सोचों से, आपके ख्यालात से एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल चेंज आती है। तो अभी जब आप सरेंडर करेंगे
تو وہ سٹریسز، وہ لیئرز، وہ پردے، وہ بادل ہٹ جائیں گے جو آپ کو اس یونیورسل انرجی کے ساتھ رابطے میں نہیں آنے دے رہے۔ میں پھر کہتا ہوں، آپ کی فریکوینسی میچ کر جائے گی۔ جیسے ایک ریڈیو ہوتا ہے، آپ گاڑی میں، وہ پہلے ریڈیو ہوتے تھے، بھاگ دوڑ میں ریڈیو چلا رہے ہوں تو اس کا وہ تھر تھراہٹ، اس کی گونج وہ کم نہیں ہوگی۔ جیسے ہی ریڈیو کو ایک جگہ پہ رکھ دیں، اس کو وہ تھم جائے، اس کو پھر ٹھیک ڈائریکشن میں رکھیں تو اس کا ٹھیک رابطہ ہو جاتا تھا۔ آج آپ نے اپنے آپ کو اتنا ریلیکس چھوڑ دینا ہے، وہ یونیورسل پاور جو پرندوں میں بول رہی ہے، جو پھولوں میں خوشبو کی طرح ہے، جو اللہ نور السماوات والارض، جو ذرے ذرے کے اندر ایک انرجی ہے، اور آپ کا یہ جسم ذرات کا ہی مجموعہ ہے، ایٹم کا مجموعہ ہے، اور ہر ایٹم میں وہ انرجی، وہ نیوکلس، وہ پاور موجود ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اور جب تک آپ اس انرجی کے ساتھ رابطے میں نہیں آتے، زندگی ہی نہیں، زندگی ایک موت کی طرح، ایک عذاب کی طرح، ایک بوجھ کی طرح بنی رہے گی۔ آئیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ میری اصل سے رابطہ ہو جائے، میری جڑوں سے، میری حقیقت سے رابطہ ہو جائے۔ سارا دکھ اپنی اصل سے، یعنی جو ہم ہیں، اس سے ٹوٹنے کا ہے۔ اور لگاتار پھر انسان اس اصل سے ٹوٹ کے بھاگ دوڑ میں اور اپنی اصل سے دور چلا جاتا ہے۔ نو واپس آ جائیں۔ میں اپنے سر کو سرنڈر کر رہا ہوں۔ جو سر کے اندر ایک گہری گرپ ہے، آپ کی سر کے اوپر آپ کا ایک قبضہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب موت آتی ہے لوگوں کو، جانوروں کو، تو جانور تمام کے تمام جو بھی جاندار ہیں وہ تڑپتے ہیں۔ انسان بھی تڑپتا ہے، پھڑکتا ہے۔ کیوں؟ وہ جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتا، جسم کے اوپر اس کی ایک گہری گرپ ہوتی ہے۔ لیکن درویش کبھی تڑپتے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ وہ بڑے آرام سے ایسے ہی اس جسم کو چھوڑ دیتے ہیں جیسے آپ نے پرانا کپڑا اتار دیا۔ بلکہ وہ آپ کو بتا کر جاتے ہیں کہ یہاں تک کہ 6 ماہ 1 سال پہلے بھی کوئی بتا سکتا ہے بھی فلاں دن میں نے چلے جانا ہے۔ وہ بڑے آرام سے اس جسم سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ تڑپنے اور پھڑکنے کا کام انہوں نے زندگی میں ہی ختم کر لیا ہوتا ہے۔ تو آئیں، ان ساری سٹریسز کو چھوڑ دیں۔ میں اپنے سر کو اندر سے اور باہر سے ڈھیلا چھوڑ رہا ہوں۔ آپ کی آئیز، یقین جانیے 6x6 آپ کی آئیز سپر آئیز ہو جائیں گی۔ آپ کا برین سپر برین ہو جائے گا۔ جب آپ کا برین رابطے میں آ جائے گا، ابھی تو کٹا ہوا ہے اپنی اصل سے۔ برین کے اوپر جو بادلز ہیں، جو کلاؤڈز ہیں، ان کو جانے دیں، لیٹ گو کر دیں۔
माथे के ऊपर जो क्लाउड्स हैं उनको ढीला छोड़ दें, सारे हिजाब उठ जाने दें। मैं अपने सर को कंप्लीटली लेटिंग गो, नरम छोड़ रहा हूँ। अभी और इसी वक्त उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ आपका राब्ता हो सकता है। वो कहीं दूर है ही नहीं, अक़रबुन, वेरी नियर, आपकी सांसों में वो है। आप उसी एनर्जी के अंदर ही लेटे हुए हो, आप उसी एनर्जी में ही हो। यस दोस्तों, ये कितनी बड़ी खुशखबरी है कि मैं एनर्जी में हूँ, मेरे आसपास शिफा है, तंदुरुस्ती है, यूनिवर्सल पावर है, इस कायनात की सबसे बड़ी सेहत है, सबसे बड़ी लज्जत और सुरूर की हालत अभी और इसी वक्त है। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। तो फिर मैं क्यों ना अपनी तवज्जो 9 में ले आऊं और उस रीज़न को खोजूं कि क्यों नहीं फिर मैं कनेक्ट हो पा रहा अपने माइंड, अपने पास्ट और फ्यूचर के ख्यालात की वजह से। सो नाउ कोई ख्याल नहीं, कोई सोच नहीं। अगर मेरा मकाम, मेरी मंजिल, टर्मिनस, वो हालत जिसे सेटिस्फैक्ट्री हालत कहते हैं, नफ्स मुतमइन्ना, अगर अभी और इसी वक्त है तो मैं फिर पागल हूँ जो मैं पास्ट और फ्यूचर का सोचूं, लंबी प्लानिंग्स करूं। दोस्तों, वो एनर्जी, वो खुशी, वो सेहत जो किसी प्रेसिडेंट को, किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी सिकंदर को, किसी बड़े से बड़े अमीर से अमीर को भी नहीं मिलती, वो अभी है। मैं आपको उसकी खुशबू महसूस करके बता रहा हूँ। अभी है, जहाँ पर हो अभी है। सर को ढीला छोड़ दें। आप अपने वजूद के अंदर अमृत का खजाना पालेंगे। नेक्टर, आबे हयात आपके अंदर है। लज्जत, सरूर, वो खूबसूरती, वो जवानी, वो हुस्न, वो जमाल, वो अभी और इसी वक्त है। मंजिल की जुस्तजू में क्यों भटक रहा है राही? मंजिल अभी है और इसी वक्त है और हम सर फोड़ रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ आए। मैं अपने चेहरे के तमाम मसल्स को आज छोड़ देता हूँ, क्योंकि मंजिल मेरी यहाँ पर है। जैसे ही मेरे मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, मेरे चेहरे का तनाव दूर हो जाएगा, बादल हट जाएंगे, तो मेरा एक कनेक्शन हो पाएगा।